welcome to my YouTube channel, and today we will discuss about a 10th class topic. This is from biology and about photosynthesis I'm going to discuss. So first of all, if we talk about photosynthesis, it comes under autotrophic mode of nutrition. Photosynthesis basically autotrophic mode of nutrition में आता है. It comes under autotrophic mode of nutrition, जहाँ पे already आप पढ़ चुके होंगे. This is from the first chapter life processes कि autotrophic mode of nutrition एक ऐसा nutrition का mode है जहाँ पे an organism synthesize its own food. वो दूसरों पे dependent नहीं होता है, वो अपना जो food है वो खुद prepare करता है. And in that we have to study the process of photosynthesis. तो photosynthesis basically क्या है? जैसे कि आप जानते हैं students, हमारे जो green plants हैं ये सब photosynthesis process perform करते हैं. They all perform the photosynthesis process. तो photosynthesis process है क्या? Photosynthesis process is a process in which green plants manufacture their own food. They prepare their own food. लेकिन कैसे? खाना prepare करने के लिए तो चीजें चाहिए ना. For example, हम food prepare करेंगे at home, we need some materials. For example, if you are cooking a curry, तो हमें क्या चाहिए? Vegetable curry बनाने के लिए what we need? Vegetables चाहिए, spices चाहिए, oil चाहिए. इसी तरह बेटा जब ये plants अपना food बना रहे होते हैं, they are making their own food, तो इनको भी कुछ raw materials की जरूरत है. So what are those raw materials? सबसे पहले sunlight. Sunlight, very important. Then we have carbon dioxide, CO2, that is the second most important. फिर इनको चाहिए होता है chlorophyll. Chlorophyll is required. Chlorophyll is important. Water is important. Water, H2O is important. तो ये चार चीज़ें, ये चार जो रॉ मटेरियल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स के लिए, ताकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट कर सके. हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये ग्रीन कैसे होते हैं? हाउ दे आर ग्रीन? ग्रीन कैसे हैं ये? ग्रीन ये होते हैं बिकॉज दे हैव ए पिगमेंट इन देम. एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो इनको ग्रीन कलर देता है, और उस पिगमेंट को हम कहते हैं दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज chlorophyll. So chlorophyll is the pigment. Chlorophyll जो है ये तो एक green color देता है हमारे plants को. एक खासियत इसकी ये है. Second point पे भी I will come, but first of all जो photosynthesis process का definition मैंने आपको बोला कि it is a process of manufacturing their food with the help of these raw materials. So we have to write down a reaction for that. So we are going to write down a reaction for that. तो CO2, carbon dioxide plus water, H2O plus water in presence of sunlight, H mu. It's a short, like written, shortly written as this for like sunlight, or chlorophyll. नीचे in presence of chlorophyll also. तो क्या बनाते हैं हमारे plants? What do they make? जो फूड ऑफ द प्लांट्स होता है दैट इज ग्लूकोज. हमारे प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज C6H12O6 प्लस वाटर भी रिलीज होता है और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, क्योंकि प्लांट्स के पास ऑक्सीजन. तो मैंने एक अपवर्ड एरो यहाँ पे मार्क किया है विच मीन्स इट्स रिलीज इन गैसियस फॉर्म. सो दिस इज द रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन फॉर photosynthesis, that these materials combine and they give rise to this glucose, which is a source of carbohydrate. ये carbohydrate का source है. So this is how this photosynthesis takes place. तो ये एक reaction है, ये बहुत important reaction है. कभी भी आपको question आएगा on photosynthesis, the reaction is a must. You have to write down the reaction. Then next हम क्या करेंगे? photosynthesis process जो है ये 2 phases में होता है. There are 2 phases of photosynthesis. One is the light reaction and second is the dark reaction. So
So first of all, I'm going to explain about the light reaction. सबसे पहले हम बात करेंगे about the light reaction. लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस इन द लीव्स, और लीव्स में भी इट टेक्स प्लेस इनसाइड द मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स में होता है ये फोटोसिंथेसिस. और ये जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट में होते हैं. क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइट रिएक्शन है, इसको हिलमैन रिएक्शन भी कहा जाता है. हिलमैन रिएक्शन, क्योंकि ये हिलमैन द्वारा दिया गया था. हिलमैन पुट फॉरवर्ड दिस रिएक्शन. सो इन लाइट रिएक्शन व्हाट हैपेंस, बिल्कुल मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बता रही हूँ. जब लाइट फॉल करती है ऑन लीव्स, जैसे ही लाइट हमारी लीव्स पे पड़ी, it will fall on leaves, what will happen? Dissociation of water will take place. We call that photolysis of water will take place. Photolysis of water or photooxidation of water will take place. Water breakdown होगा. और light जब leaves पे पड़ती है, तो this light is absorbed by chlorophyll. Chlorophyll इस light को absorb करता है और water का breakdown होता है. वाटर का फोटोलिसिस हो रहा है, तो क्या होगा वाटर के फोटोलिसिस पे? दिस वाटर इज ब्रोकन डाउन इनटू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन. दिस सो यहाँ पे ये प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. सो ये सिंपल है. दिस इज सिंपली अबाउट लाइट रिएक्शन कि क्या होता है इसमें. बिल्कुल सिंपल है. लाइट विल फॉल ऑन लीव्स, photo oxidation of water will take place. क्यों? Lysis is breakdown, oxidation is breakdown, and photo word हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है and it's getting broken down. तो नेक्स्ट जो हम, और ये जो लाइट रिएक्शन है, ये कहाँ पे होती है? It takes place in the grana region of chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में ग्राना होते हैं. जो अगर मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट सा दे दूँ, तो these are like coin-like structures which are called as thylakoids, and when these are piled up, they are called as the grana. So in this light reaction will take place. Fine. Now second, we are going to discuss about the dark reaction. That in dark reaction, what takes place? So now we will discuss the dark reaction. Now dark reaction, what will take place? So in dark reaction what happens? सबसे पहले dark reaction को कहा जाता है Blackman's reaction, क्योंकि ये Blackman द्वारा दी गई थी. ठीक है, it was given by Blackman. और ये जो डार्क रिएक्शन है, ये हमारे स्ट्रोमा में होता है. स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा विच इज द फ्लूइड मैट्रिक्स. सो व्हाट हैपेंस, हमने लाइट रिएक्शन में देखा कि लाइट फॉल हुई, वाटर ब्रेक डाउन हुआ, बट यहाँ पे CO2 इज यूज्ड अप. तो फिक्सेशन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस. यहाँ पे फिक्सेशन होती है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, with the help of an enzyme 6-ribulose bisphosphate. 6-ribulose bisphosphate ये एक एंजाइम है. प्लस जब हमारे वहां से प्रोटॉन्स और हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, वो एसिमिलेटरी पावर बनाने में हेल्प करते हैं. सो हियर व्हाट इज फॉर्म्ड? NADPH, 18 NADPH plus 18 ATP molecules. तो यहाँ पे in dark reaction what takes place? In short, CO2 fixation takes place with the help of enzyme 6-ribulose bisphosphate plus 18 NADPH plus 18 ATP molecules. तो क्या होगा जब इसकी fixation होगी? What will be formed here?
यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज 6C6H12O6 ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड। और ये एंजाइम इसके साथ रहेगा यहाँ पे एज इंटरमीडिएटरी, ठीक है, 6-ribose बिसफॉस्फेट, और यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी 18 NADP जो हैं दे विल बी रिड्यूस्ड टू 12 NADP पॉजिटिव इज फॉर दिस हाइड्रोजन, ये रिड्यूस्ड हो जाएंगे, और 18 ATP भी 12 ADP, और इसमें से एक जो है ऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा PI, क्योंकि ये ट्राइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट बाहर निकल गया, सो इट्स 12 ADP। सो दिस इज द डार्क रिएक्शन इन शॉर्ट, बिल्कुल ब्रीफली मैंने आपको बता दिया, दिस इज डार्क रिएक्शन सिंपली इन विच आपको याद रखना है CO2 फिक्सेशन इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ 6-ribose बिसफॉस्फेट, तो ग्लूकोज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जो हमारा फूड है प्लांट्स का ग्लूकोज। और स्टूडेंट्स प्लांट्स जो हैं ये फूड को स्टोर भी रखते हैं एक फॉर्म में, दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज स्टार्च। सो द फूड दैट इज स्टोर्ड इन प्लांट्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो ये आज का जो भी एक्सप्लेनेशन था, दिस वाज अबाउट फोटोसिंथेसिस इन वेरी लाइक ए ब्रीफ क्विक रिव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर